ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਹੈ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना इम्पॉर्टेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। सो WHO ने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीनस एक परसन के असी जिन्ने भी एस्पैक्ट्स ने, फिजिकली देखिए, इमोशनली देखिए, बिहेवियरल देखिए, ये सारे एस्पैक्ट्स जिहड़े ने इन्हां दी वैलबींग जिहड़ी है वो इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी किहड़ी सोसाइटी होएगी? It is a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them। सो जिस सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵਲੀ ਹੈਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO। ਨੈਕਸਟ, ਬੱਚੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ RCH ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। RCH ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ 1951। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ। तो सबसे पहले बच्चे बहुत ईजी पॉइंट्स ने, चैप्टर बहुत ईजी है जिवें मैं तुहानूं दस्सिया। सब तो पहला है कि रिप्रोडक्टिव हैल्थ नूं लैके लोगों दे विच बहुत जिहड़ा है वो अवेयरनेस की कमी है, देयर इज़ ए लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे अंधविश्वास, मिथ्स, मिसकनसैप्शनस ने लोगों दे विच अबाउट द सैक्स रिलेटेड एस्पैक्ट्स एंड मोर ओवर द जिहड़ियां STDs जिहड़े ने कॉमनली अकरेंस हैगा सैक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, एंड ह्यूमन पॉपूलेशन जो इन्नी तेज़ी दे नाल वध रही है, पॉपूलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है विच इज़ एसोशिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दैन इलीगल एबॉर्शन जिहड़ा फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल फिटिस नूं इलीगली एबॉर्ट किया जा रहा है, या इनफर्टिलिटी है कपल्स दे विच, ਜਿਹੜੇ ਕਪल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਨੇ, ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਏਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। then we have to create awareness ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ? both male and female ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ about various reproduction aspects। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈ, TV ਹੈ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ +1 +2 ਜਾਂ 10th ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। then how to prevent and control sexually transmitted infection or sexually transmitted diseases। so proper information ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ reproductive organs ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਦੈਨ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦ ਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ। ਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਐਂਡ ਪੋਸਟਨੇਟਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਏਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then to provide awareness about the ill effects of population explosion। ਜੋ population explode ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ population ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ill effects ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਔਰ ਸੈਕਚੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ population ਹੈਲਥ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। then adolescent age, sex related problem, myths, changes in the body during this particular phase। so these all are the different aims of reproductive health programs। next okay ਬੱਚੇ, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ a brief introduction ਕਿ what is reproductive health and what are the programs involved in maintaining reproductive health, what are the various problems which are associated with reproductive health, and lastly I told you the various aims of reproductive health programs। now let's come to the next topic, that is ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ। what is demography? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ it is the scientific study of human population। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਸਨ ਇਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵਡ in the scientific study of human population is known as demographer। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? the person is known as demographer, right? I'll write it here, you can note it down। the person who studies demography is known as demographer। now next, census। census ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? it is the procedure of collecting, systematic procedure ਹੈ of collecting information about the human population। ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 2011 ਦੈਟ ਇਜ਼ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ 15th ਸੈਂਸਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਸ 2 ਬਿਲੀਅਨਸ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ 1947 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ
in 2011 ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। 1.2 ਬਿਲੀਅਨ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ टिल डेट इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.38 बिलियंस हो चुकी है। सो बच्चे एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ इंडियन। सो जस्ट सी कितनी तेज़ी के नाल पॉपुलेशन जिहड़ी है वो ग्रो कर रही है। और ये जिहड़े मैं जिन्ने भी इत्थे डाटा दिते ने सारे एक क्वेश्चन के रूप में तुहानूं पूछा जा सकता है। कॉम्पीटिटिव क्वेश्चनस ने व्हाट इज़ डेमोग्राफी, फर्स्ट सेंसिस कदों हुए सीगे और अपना जिहड़ा लास्ट सेंसिस है वो कदों हुए हैं और इंडिया की पॉपुलेशन का डाटा जिहड़ा है वो किस तरह इनक्रीज़ किया है। सो वो इत्थे तुसीं ये चंगी तरह नोट कर सकते हो। नैक्सट ना बच्चे नैक्सट आ गया कि कॉजेज़ की ने ऑफ इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिहड़ी इन्नी तेज़ी दे नाल इंक्रीज़ हो रही है इसके की कारण हैं। सो इसके कारण इत्थे मैं पॉइंट्स कुछ लिखे ने जो कि मैं तुहानूं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी और जो कि बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। सो मेन है इत्थे डिक्रीज़ इन द डेथ रेट एंड इंक्रीज़ इन द लॉन्गिविटी। जो डेथ रेट है वो घट गया है और लॉन्गिविटी जिहड़ा लाइफ स्पैन है वो जिहड़ा है वो वध गया है। ये दो मेन कारण हैं फॉर इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशंस। सो व्हाट आर द वेरीअस फैक्टर्स, आप वन बाय वन फैक्टर्स देखने की कोशिश करांगे जिस दे नाल साडा डेथ रेट जो है वो घट हो गया। सब तो पहला कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर असी पहला देखते सी कि अगर कोई डिजीज़ फैलती सी तो लोगों को इन्नियां फैसिलिटीज़ नहीं सी, इन्नी एडवांसमेंट नहीं सी, मैडिसिन्स नहीं सी और बहुत सारे लोग जिहड़े सी उन्हां दी डेथ हो जाती सी। बट अगर आपां अज देखते हैं तो बहुत साइंस ने एडवांसमेंट कर ली है इन द फील्ड ऑफ मैडिसिन, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। साडे कोल बहुत सारे मैथड्स ने डिजीज़ नूं कंट्रोल करने वास्ते, ठीक है। सो बैक्टीरियल वायरल इन्फैक्शनस ने उहदे वास्ते साडे कोल एंटीबायोटिक्स ने। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिहदे नाल कि पॉपुलेशन जिहड़ी है वो इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज असी डिजीज़ नूं, बीमारियां नूं कंट्रोल करके अपना जिहड़ा डेथ रेट है वो घटाता है। सैकेंड हैगा डिक्रीज़ इन IMR। बच्चे इहदा फुल फॉर्म तुहानूं आना चाहिए, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। सो पहला की हुंदा सी जिहड़ा बच्चा सी, जिहड़ा इन्फेंट सीगा, बर्थ टाइम ते उसकी डेथ हो जाती सी। या MMR है दैट इज़ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, मदर की डेथ हो जाना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या पार्टूरेशन के टाइम ते तो साडे कोल फैसिलिटीज़ नहीं सी। सो ये जिहड़ा डेथ रेट सीगा ये बहुत ज़्यादा सीगा। सो ये हुण एडवांसमेंट के नाल बैटर हैल्थ केयर है, ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो सर्वाइव करते हैं अप टू रिप्रोडक्टिव एज और उस दे नाल जिहड़ा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। नैक्सट हैगा बैटर सैनीटेशन एंड कम्यूनिटी हेल्थ स्कीम्स। सो साडा जिहड़ी बैटर सैनीटेशन होने दे नाल जिहड़ा एक परसन का जिहड़ा एवरेज लाइफ स्पैन है, इत्थे मैं ऊपर तुहानूं दस्सिया सी लॉन्गिविटी। सो एवरेज लाइफ स्पैन जो है किसी भी परसन का वो हुण इनक्रीज़ हो गया है, राइट। दैन वी हैव बैटर मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीनस पहला की हुंदा सी डेथ हो जाती सी लोगों की, जिवें कोई प्रॉब्लम आ गई है तब ट्रांसपोर्ट नहीं सीगी, किसी कोई बीमार हो गया या कोई एमरजेंसी है तो जब तक आपां उसनूं मैडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते सी परसन नूं तो उसकी डेथ हो जाती सी। बट हुण की है साडे कोल बैटर मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ने, उहदे नाल नंबर ऑफ डेथ्स जिहड़े ने वो डिक्रीज़ हो गए हैं। दैन इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि साडे कोल एग्रीकल्चर है, अच्छी क्रॉप्स हो रही ने, साडी जिहड़ी पैदावार है एग्रीकल्चर की यील्ड्स जिहड़ी है वो इंप्रूव हो गई है, बैटर क्वालिटी के सीड्स आ गए ने, बैटर साडे कोल फर्टिलाइजर्स हैगे ने। सो इहदे नाल साडी जिहड़ी फूड की प्रोडक्शन है वो कई गुणा ज़्यादा वध गई है। सो कोई भी बंदा इस तरह का नहीं है जिहड़ा कि स्टारवेशन करके या भुखमरी करके कोई मर रहा हैगा। सो ये भी एक कारण है जिस दे नाल जिहड़ा डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा घट गया और पॉपूलेशन जिहड़ी है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। उस तो बाद साडे कोल बैटर स्टोरेज कंडीशनस हैगियां, पहला जिवें क्रॉप्स आंदे सी साडे कोल स्टोरेज की इन्नी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं सीगी, जिहड़ा ग्रेन्स हुंदे सी वो खराब हो जाते सी, जिहदे नाल अल्टीमेटली उहदा इफैक्ट लोगों ते पैंदा सी ड्यू टू स्टारवेशन या लोगों नूं चीज़ां मिलदियां नहीं सी।
तो लोगों की डेथ हो जाती सी। सो इदां दे बहुत सारे रीजनस हैगे ने, बहुत सारे फैक्टर्स हैगे ने जिहड़े कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द डिक्रीज इन द डेथ रेट। ठीक है, सो अपना टॉपिक ही सीगा, अपना टॉपिक सीगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। सो मेजर कॉजेज जिहड़े कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज द decline in the death rate. So decline in the death rate and increase in the longevity, they are the two primary factors which are responsible for increase in the human population. So I hope this is clear to you now. ओके बच्चे, इत्थे मैं एक पोस्टर दिखाया है तुहानू जिहदे विच कि मैं शो किया है कि जे पॉपूलेशन, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हाँ कि देर आर डिफरेंट रीजनस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉपूलेशन। सो ये जिहड़ा पोस्टर है ये कि तुहानू की शो कर रहा है, तुहानू पॉपूलेशन एक्सप्लोजन शो कर रहा है। ठीक है, पॉपूलेशन एक्सप्लोड हो रही है, बहुत तेज़ी नाल वध रही है, उसनू असी बोलते हाँ पॉपूलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, सो हुण असी ये देखांगे कि जिहड़े की कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं जिहड़ी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है पॉपूलेशन का। सो एक नॉट ओनली कंट्री वास्ते किसी परसन नैशनल लैवल ते तां एक लॉस हैगा ही है, बट उस तो बाद जिहड़ा इंडिविजुअल है उसकी अपनी फैमिली है वो भी इसके कॉन्सिक्वेंसिस जिहड़े हैं वो फेस कर रही है। सो आपां कुछ इत्थे मैं फैक्टर्स लिखे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल which are the main consequences of the over population. So they are very easy point, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत easily समझ आ जाएंगे। सब तो पहला ਆਪਾਂ जे स्पेस की गल करिए, जिमें अगर पॉपूलेशन जिन्नी तेज़ी नाल पॉपूलेशन साडी इंक्रीज़ हो रही है, सो उस दे नाल उस पॉपूलेशन नू अकोमोडेट करन वास्ते असी नवे शहर बसा रहे हैं, टाउनस बस रहे हैं। सो उहदे नाल की हो रहा है, ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा साडा एग्रीकल्चरल लैंड है उसनू असी खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट जिहड़े है उन्होंने असी कट रहे हैं। सो की प्रॉब्लम की हो रही है, वी आर सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उस दे नाल की होएगा, सॉइल इरोजन होएगा, उस दे नाल फ्लड्स आएंगे। सो एक प्रॉब्लम है। सो एक सिंपल वर्ड मैं स्पेस बोलिया, और स्पेस इट मीनस इंक्रीजिंग पॉपूलेशन नू एकोमोडेट करन वास्ते सानू ज़्यादा स्पेस चाहिए है, और इस दे नाल असी किन्नियां होर प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने वो फेस कर रहे हैं। राइट, नैक्सट तुसी फूड सप्लाई ते आ जाओ। सो नैक्सट इज़ द फूड सप्लाई। फूड सप्लाई क्या है, बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपूलेशन ग्रोथ बट स्लो फूड इंक्रीज। सो कुछ लोग इदां दे ने क्योंकि पॉपूलेशन इन्नी तेज़ी नाल वध रही है कि हर परसन नू एक बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा। बैलेंस डाइट की है जिहदे च फूड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ने जो कि सानू जरूरी चाहिए ने। सो परसन जिहड़े हैगे इंक्रीजिंग पॉपूलेशन जिहड़ी है, पीपल आर नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट, तो उहदे नाल लोग की हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, सो उहदे नाल की होएगा, जो प्रॉपर डाइट नहीं बने मिलेगी तो लोग वीक हो जाएंगे, एनीमिक हो जाएंगे और मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, तो उस सोसाइटी के एक हेल्दी मैंबर्स नहीं बन सकते। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ओवर पॉपूलेशन का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, मोर पीपल लैस एम्प्लॉयमेंट। सो वॉट हैपन्स, ਜਦੋਂ एक पढ़िया लिखा कोई एक व्यक्ति है, वो पढ़िया लिखा है, एजुकेटेड है, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो उस दे नाल की होएगा, फ्रस्ट्रेशन होएगी, एजिटेशन होएगी। जिन्नी पॉपूलेशन वध रही है बट उन्नियां जॉब्स नहीं है, उस दे नाल अनएम्प्लॉयमेंट जिहड़ी है वो वधेगी, जिहदे नाल कि बहुत तरह के फर्दर उहदे कॉन्सिक्वेंसिस जिहड़े ने वो बहुत गलत हो। नैक्सट हैगा एजुकेशन। सो ओवर पॉपूलेशन के नाल की होएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे विच रश हो जाएगा, टीचर टॉट जिहड़ा रेशो है वो बढ़ जाएगा। हुण एक टीचर है वो 50-60 स्टूडेंट्स नूं अगर पढ़ा रहा है तो वो प्रॉपर हर बच्चे नूं इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो बच्चों की एजुकेशन ते इहदा फर्क पेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ओवर पॉपूलेशन का। नैक्सट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन ओवर पॉपूलेशन नाल की होएगा, पॉपूलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है ज़्यादा तो ज़्यादा, सो ज़्यादा पोल्यूशन जिहड़ा हैगा, हर तरह का पोल्यूशन इस नाल बढ़े। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। सो हर तरह का पोल्यूशन जिहड़ा है वो इंक्रीज़ होएगा बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपूलेशन और बिकॉज ऑफ द पॉपूलेशन एक्सप्लोजन।
then we have price rise। ਸੋ ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੈਨ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। एनर्जी क्राइसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर लोगों की जी एनर्जी की डिमांड हैगी है, जिन्ने ज़्यादा लोग होंगे उन्होंने एनर्जी की डिमांड उन्नी ही ज़्यादा होएगी और ऑब्वियसली उसका की होएगा, क्राइसिस हो जाएगा। then you have eco degradation। what is eco degradation? so over population ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ eco ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ environment ਹੈ ਉਹਦੀ degradation ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो उत्थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन ते हाइजीन जिहड़ी है वो मेनटेन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिफोरेस्टेशन मैं तुहानूं ऊपर दस्सिया कि जिहड़ी स्पेस है उसकी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन वास्ते घर बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, इंडस्ट्रीज़ बनानियां हैं, रोड्स बनानियां हैं, सो ट्रांसपोर्ट वास्ते ध्यान देना है। सो इस दे नाल आपां ज़्यादा तो ज़्यादा की कर रहे हैं, सानूं आपां नूं पेड़ां नूं कट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है। सो डिफोरेस्टेशन नाल होर ਉਹਦੇ कॉन्सिक्वेंसिस ਆਪਾਂ देखिए, क्योंकि जिद्दां ਆਪਾਂ पेड़ां नूं कटांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ एनवायरनमेंट की तरफ देखते हो तो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है। हैल्थ केयर तो देख रहे हो वो भी हर आपां कोल लिमिटेड हैल्थ केयर है जिहड़ी कि आपां एक लिमिटेड पॉपूलेशन नूं प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू नाल देख रहे हो तो आपां जिद्दां आपां बैलेंस्ड फूड जिहड़ा हैगा वो नहीं दे सकते पॉपूलेशन नूं। सो ये सारे की ने, ये सारे कॉन्सिक्वेंसिस ने ओवर पॉपूलेशन के। सो बच्चे आपां अज देखिया कि जिहड़ी आपां अपने दो चैप्टर्स, दो टॉपिक्स अज आपां कीते। एक तां आपां रिप्रोडक्टिव हैल्थ देखिया कि मेन रिप्रोडक्टिव हैल्थ की चीज़ हैगी है, WHO ने उन्होंने किस तरह डिफाइन किया है। और इत्थे मैं तुहानूं एक होर इंपॉर्टेंट गल दसी सी कि प्रोग्राम्स जिहड़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए ने फॉर मेनटेनिंग रिप्रोडक्टिव हैल्थ, जिस दे विच कि मैं तुहानूं फैमिली प्लैनिंग प्रोग्राम्स दसे। फैमिली प्लैनिंग प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, और इसनूं फिर मॉडिफाई करके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हैल्थ प्रोग्राम बनाया गया, जिसनूं कि आपां RCH बोलते हैं। दैन उस तो बाद असी वेरीअस प्रॉब्लम्स देखे कि इस तरह के किहड़े-किहड़े प्रॉब्लम्स ने जो कि रिप्रोडक्टिव हैल्थ के नाल एसोशिएटेड ने, रिप्रोडक्टिव हैल्थ के एम्स की ने, किस तरह असी लोगों नूं अवेयर करना है डिफरेंट वेज दे नाल, सैक्स एजुकेशन आपां प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह आपां फर्टाइल कपल जिहड़ा है, फर्टाइल कपल आपां उसनूं कहने जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, या जिहड़े वो लोग जिहड़े कि मैरिजेबल एज दे विच ने, ठीक है, उन्होंने आपां एजुकेट किद्दां कर सकते हैं अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर दे सकते हैं मदर ते चाइल्ड नूं, ब्रैसट फीडिंग की इंपॉर्टेंस दस सकते हैं। बहुत सारे सैक्चुअल एब्यूज़ ने, रेप हो जाते हैं, सैक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है सोसाइटी दे विच, सैक्स रिलेटिड बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है ये रिप्रोडक्टिव हैल्थ प्रोग्राम्स के अंदर आएगा। उस तो बाद आपां देखिया कि जिहड़ा पॉपूलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, सो ये वास्ते भी रिप्रोडक्टिव हैल्थ प्रोग्राम्स अवेयरनेस दे रहे हैं। दैन वॉट इज़ डेमोग्राफी, आई एक्सप्लेन यू, एंड दैन वॉट आर द रीजन, वॉट आर द टू मेन रीजनस के विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉपूलेशन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और लॉन्गिविटी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ रहा हैगा, और उसके की कॉन्सिक्वेंसिस होंगे ये आपां हुणे डिस्कस किया। सो ये जस्ट अज एक इंट्रोडक्शन चैप्टर बच्चे आप लिया रिप्रोडक्टिव हैल्थ का। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान है, बट एग्जाम्स के ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। सो बच्चे ये तुसी नोट्स बनाओ, इसनूं लर्न करो, और कोई प्रॉब्लम है तो तुसी इसनूं डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे।